Bruno, you have disappointed to the core because I've never expected this from you. Lip oil, gloss, whatever this is the worst product I've ever tried. I almost feel like I've been scammed by Mrucha Beauty. I know guys, we messed up and I want to speak to you honestly about it. Over the past few weeks, we have received messages, comments and seen posts regarding our lip melts. Some of you shared that after few uses, the product wasn't coming out easily. We also noticed concern about whether the quantity was less or if the product was drying out. I want to clarify this with complete transparency. The quantity in every lip melt has always been exactly as mentioned and the product was not drying out. This is my old lip melt. See? As you can see, the product is completely there, exactly as the mentioned quantity. See? It's there. It's there. It's still there. What was happening is that lip melt is a balm plus gloss hybrid made with a butter-rich formula. Because of its thicker texture, the product was sticking to the inner wall of the bottle. Along with this, shorter applicator made it difficult to reach the product properly, and that frustration is completely valid. I am genuinely so sorry for this experience. मुझे तो पहले से Mrucha Beauty overhyped लगता है. Just buy a simple plain tote bag and cut out Mrucha sticker from any of their package box if you have, and boom, you have that bag in less than 200-300. I don't follow her, but one of her reel randomly popped up on my feed. She launched some brand and it's basic. Influencers literally overpriced thing. You can buy better quality in this much money. Now the product are mid and overpriced, but girly choose to sell a sabji लाने वाला bag for 700. Always thought there is fishy thing about her product. वैसे भी PR था सब. I don't know why her followers unable to see that it's PR, not genuine reviews by influencer. First of all, comparing her product to Huda Beauty product is an insult to Huda Beauty. Also, her brand looks and feels so cheap, would never buy. In this video, we are going to talk about Bruno's response to the lip melt launched by her brand Mrucha Beauty and the product quantity issue controversy. We will also discuss why some people have suddenly started hating on her products, so make sure you watch till the end. So recently पिछले कुछ दिनों से मेरे पूरे इंस्टा फीड पे Mrucha Beauty के लिप मेल्ट से रिलेटेड काफी वीडियोस आ रहे थे, जहां पे अलग अलग क्रिएटर और कस्टमर अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे. इस पूरे कंट्रोवर्सी के बीच मृणाल पंचाल एके मृनु की तरफ से एक रिस्पांस वीडियो भी आया, लेकिन मृनु ने एग्जैक्टली क्या रिस्पांस दिया है उसके बारे में बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी. फॉर कॉन्टेक्स्ट, मृनु का एक ब्यूटी ब्रांड है जिसका नाम है Mrucha Beauty. जनरली देखा जाए तो ब्यूटी इंडस्ट्री में कभी कभी इश्यूज हो जाते हैं, जैसे पैकेजिंग डिफेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग इशू या डिलीवरी के टाइम डैमेज. और ये बात हम सब जानते हैं कि एक दो डिफेक्टिव पीसेस किसी भी ब्रांड के साथ हो सकते हैं, बट Mrucha Beauty के केस में ऐसा कुछ नहीं था. उनके मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स के साथ ऐसा सेम एक्सपीरियंस हो रहा था. और सिर्फ कस्टमर्स ही नहीं, काफी क्रिएटर जिनको PR में लिप मेल्ट रिसीव हुआ था, उन्होंने भी वीडियो बना के दिखाया कि उनके प्रोडक्ट में क्वांटिटी रिलेटेड सेम इशू था. अब इन सारे इश्यूज को एड्रेस करते हुए ब्रुनो ने एक वीडियो पोस्ट किया है. Over the past few weeks, we have received messages, comments, and seen posts regarding our lip melts. Some of you shared that after few uses, the product wasn't coming out easily. We also noticed concern about whether the quantity was less or if the product was drying out. इस वीडियो में उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वीक से उनकी टीम को कमेंट्स, मैसेजेस और टैग मिल रहे थे, जहां लोग Mrucha Beauty की लिप मेल्ट को लेके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे थे. कुछ लोगों ने शेयर किया है उनके लिप मेल्ट से प्रोडक्ट इजीली नहीं निकल रहा था. ऑल्सो क्वांटिटी और प्रोडक्ट ड्राई हो रहा था. कई लोगों को इन सब चीजों को लेके भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी. इसके रिस्पॉन्स में ब्रुनो ने क्लैरिफाई किया कि हर लिप मेल्ट में सेम फिक्स्ड क्वांटिटी होती है और उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट एक्चुअली ड्राई नहीं होता, बस पैकेजिंग की वजह से ये हो रहा है. इस बात को प्रूफ करने के लिए ब्रुनो ने अपना ही एक पुराना लिप मेल्ट दिखाया और ये शो किया कि प्रोडक्ट बॉटल के अंदर ही प्रेजेंट है, बस पैकेजिंग की डिजाइन की वजह से वो इजीली बाहर नहीं आ पा रहा. ब्रुनो ने फर्दर एक्सप्लेन किया कि लिप मेल्ट का फॉर्मूला एक बाम प्लस ग्लॉस हाइब्रिड है, जो एक बटर रिच फॉर्मूला के साथ बनाया गया है. इसी वजह से लिप मेल्ट का टेक्सचर थोड़ा थिक है और प्रोडक्ट अक्सर बॉटल की इनर वॉल्स पे स्टिक हो जाता है. साथ ही जो एप्लीकेटर यूज हो रहा था वो लेंथ में थोड़ा शॉर्ट था, जिस वजह से वो बॉटल के इनर कॉर्नर्स या वॉल्स तक प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाता और इसी वजह से लोगों को लग रहा था कि प्रोडक्ट खत्म हो गया है या कम क्वांटिटी है. ब्रुनो ने ये भी कहा कि कस्टमर्स का फ्रस्ट्रेशन भी वैलिड है और उन्होंने इसके लिए एक पब्लिक अपॉलॉजी भी दी. और Mrucha Beauty का जो पैकेजिंग का सोर्स है ये इंटेंशनली है, इस वजह से एप्लीकेटर को चेंज करने में उन्हें टाइम लगा इतना. अब एप्लीकेटर के साथ साथ फॉर्मूला भी चेंज किया गया है लिप मेल्ट का. और अभी तक जिसने भी पोस्ट किया है उनके प्रोडक्ट को लेके, उनके रिव्यूज को लेके एक्नॉलेज किया गया है. मैंने खुद भी देखा है आज तक जितने क्रिएटर्स ने ब्रुनो के प्रोडक्ट
प्रोडक्ट को लेके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, उनके रील में मृचा ब्यूटी की तरफ से रिस्पॉन्स आया है, जो कि अच्छी बात है। मृनु और उनकी टीम रिव्यूज को इग्नोर नहीं कर रही, बल्कि उन्हें फीडबैक की तरह एक्सेप्ट कर रही है। अब मृनु ने अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट किया है, इसलिए लोग उन्हें और सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ मंथ पहले भी एक इन्फ्लुएंसर ने वीडियो पोस्ट किया जहां उनका जो लिप मेल्ट था वो 10 टाइम्स में ही एंड हो गया था। उस टाइम पर ब्रांड की तरफ से रिस्पॉन्स आया था कि एक्चुअल इशू प्रोडक्ट क्वांटिटी का नहीं बल्कि पैकेजिंग का है, जिस वजह से प्रोडक्ट प्रॉपरली बाहर नहीं आ पा रहा और लग रहा था कि लिप मेल्ट जल्दी फिनिश हो गया है। कुछ वीक्स पहले भी एक इन्फ्लुएंसर ने वीडियो पोस्ट किया था जहां उनका जो लिप मेल्ट था वो ड्राई हो गया था। उन्होंने न सिर्फ इश्यूज को एक्नॉलेज किया बल्कि पब्लिक अपॉलॉजी भी दिया। और भी कई रील्स देखे हैं मैंने, बट द गुड थिंग इज मृनु ने अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट किया है और साथ ही पैकेजिंग और फॉर्मूला दोनों में चेंजेस किए हैं। और ऑनेस्टली कोई भी ब्रांड, स्पेशली ब्यूटी ब्रांड, ऐसे ही सक्सेस अचीव नहीं कर पाता। सिर्फ सेलिब्रिटी फेस होने से ब्रांड नहीं चल पाता। अगर कोई ब्रांड अपने कस्टमर्स के फीडबैक को सीरियसली नहीं लेता तो सेलिब्रिटी बैकिंग होने के बाद भी ब्रांड का इम्पैक्ट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जैसे आज के टाइम पे दीपिका पादुकोण का 82 डिग्री ब्रांड को इनिशियल हाइप तो मिली थी, बट अभी उनके ब्रांड के ऊपर कोई बात नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ कैटरीना कैफ का के ब्यूटी है, आज भी लोग जेन्युइनली उनको पसंद करते हैं। और इसका मेन रीजन ये है कि स्टार्टिंग से ही कैटरीना और उनकी टीम ने कस्टमर्स के फीडबैक को सीरियसली लिया है, फॉर्मूलाज इम्प्रूव किया। मैंने के ब्यूटी के ऊपर भी डिटेल में डिस्कस किया है इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को भी देख ही लेना। हो सकता है कि फ्यूचर में मृनु भी के ब्यूटी की तरह अपने ब्रांड को सक्सेसफुली स्टैब्लिश कर पाए, क्योंकि अब वो हर फीडबैक को सीरियसली ले रही हैं और अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हैं। हर ब्रांड की तरह मृचा ब्यूटी के लॉन्च होने के बाद उन्हें अपने प्रोडक्ट को लेके काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी और इसका एक पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि लॉन्च के टाइम पर ब्रांड ने ज्यादा फोकस पेड प्रमोशन और पीआर रिव्यूज पे किया हो सकता है कि स्टार्टिंग फेज में हर न्यू ब्रांड की तरह उन्हें इन्फ्लुएंसर्स को पीआर भेज के प्रमोशन करना ज्यादा सेफ ऑप्शन लगा हो इंस्टेड ऑफ प्योरली ऑनेस्ट रिव्यूज। लेकिन अगर शुरू से ही ऑनेस्ट रिव्यूज आते तो शायद आज ये इशू इतने बड़े लेवल पे क्रिएट नहीं होता। लॉन्च के कुछ टाइम बाद उनके ऊपर पैकेजिंग को लेके कॉपी करने के एलिगेशंस भी लगे थे और मुझे लगता है कि मृनु अगर स्टार्टिंग से ही रिव्यूज पर ध्यान देने लगती तो शायद ये इशू क्रिएट नहीं होता। बट अब धीरे धीरे वो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हैं अपने मिस्टेक्स को देख के, क्योंकि अब 1 ईयर भी हो गया है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी उनके प्रोडक्ट को लेके बढ़ रही है। मृनु जो है वो ऑलरेडी मेकअप इंडस्ट्री में फेमस थी, तो उनके ब्रांड को लेके भी एज एक्सपेक्टेड काफी एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की। इन माय ओपिनियन मृनु ने अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट किया है और सिर्फ जस्टिफाई करने के बजाय एक्चुअल इम्प्रूवमेंट लाने की वो कोशिश कर रही हैं, तो अब उनके एक्शंस को देखना चाहिए। कुछ मंथ्स पहले मृनु ने अपने ब्रांड के अंडर बैग्स और पाउचेस भी लॉन्च किया था और इनके प्राइस भी काफी हाई हैं। इस वजह से उन्हें काफी क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा था, क्योंकि ब्यूटी ब्रांड के साथ उन्होंने दूसरे प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च किया था। मैंने इससे पहले भी कई ब्यूटी ब्रांड्स के ऊपर डिस्कस किया है और तब मैंने मृचा ब्यूटी पर भी एक वीडियो बनाया था, आप चाहो तो देख सकते हो। एंड उनके प्रोडक्ट को लेके कस्टमर्स को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है उसके ऊपर मैंने डिटेल में बात किया है उन वीडियोस में, तो उन वीडियो को भी देख ही लेना। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस एंड डू लेट मी नो कि आपने कभी मृचा ब्यूटी के प्रोडक्ट को ट्राई किया है और कौन सा प्रोडक्ट ट्राई किया है और आपका क्या कहना है इस मैटर में। डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।